کا یہ ہے کہ فائنینشلی میری مدد ہو جائے، مطلب یہ مقصد یہ ہے. مینٹل ہاسپٹل میں کبھی مقبول کیسے تو ہم ابھی دے سکتے ہیں آپ کے وقت سے اس کو بیمار ہے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ سے امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے، صحت مند ہوں گے. اللہ جل جلالہ آپ سب کو خوش اور صحت مند رکھے. میرے بھائیو، آج ہمارے گاؤں میں ڈپٹی کمشنر آف نوشہرہ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر آف پبی ملیحہ سحر صاحبہ ہمارے گاؤں میں تشریف لائیں اور منتخب ناظمان کے ساتھ انہوں نے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں عوام کو بھی مدعو کیا اور عوام کو ڈینگی سے بچاؤ کے متعلق معلومات فراہم کی کہ ڈینگی کیا ہے، ڈینگی کی علامات کیا ہے اور ڈینگی سے بچا کیسے جائے. اور بھی ہمارے گاؤں کے مختلف مسائل میں انہوں نے بھاگ دوڑ کی اور ہمارے گاؤں میں کافی جگہ وزٹ کیا، اور جہاں پر یعنی جو تنازعات تھی لوگوں کی اس میں بھی بھاگ دوڑ کی اور اس میں بھی پیش رفت کیا اور لوگوں کو کافی سمجھایا. اور عورتوں کے لیے خصوصاً انہوں نے کھلی کچہری کا اہتمام کیا اور اس میں وہ مسائل جو ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے براہ راست خواتین سے پوچھا اور ان کو حل کرانے کی جو یقین دہانی کروائی. اور ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں آئی اور گاؤں کے لوگوں کے ساتھ اتنی زیادہ ہمدردی کا اظہار کیا. تو اللہ جل جلالہ ان کی عمر میں، ان کے مال میں، ان کی زندگی میں، ان کی دنیا اور آخرت میں برکت عطا فرمائے اور اللہ جل جلالہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کو نصیب فرمائے. تو چلیں اب ویڈیو شروع کرتے ہیں. آپ کو ویڈیو میں سارا کچھ انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا 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 ہمارے لیے، ہمارے گاؤں کے لیے. آپ سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں. وہ بھی آپ سے میں لے لوں گی انفارمیشن کے اوپر، آپ کو میرا نام کمیونیکیٹ کر دوں گی اور بتا دوں کہ جو میرے سیکرٹس ہیں. ٹھیک ہے، چلیں بہت مہربانی طیب صاحب، بہت شکریہ. ہماری طرف سے پوری قوم کی طرف سے میں آپ کو شکر گزار. بہت شکریہ، مہربانی آپ کا شکریہ. اگر آپ جیسے جو ہے نا ہمارے آگے ہوں تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہوں. انشاءاللہ پانی کا بہت مسئلہ ہے، اس کا ختم کرنا. پانی کا مسئلہ بھی ختم کریں گے، لیکن جب تک ختم نہیں تو جب تک مرد حضرات بھی عورتوں کے ساتھ پانی اٹھا لیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا. میں آپ کو جو ہے نا چھوٹی دیتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہاں پر صرف پانی کا پائپ لائن کا کام سے تھا. نہیں، اور ساتھ میں جو انلیگل ہے نا، انلیگل کو تو صاحب یہ میرے سے بتائیے کہ آپ کی ہے، آپ نے کہا آپ کی نہیں، آپ کی ہے. یہ بلیم شفٹنگ ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے نا کہ میرا نہیں قصور، اس کا نہیں قصور، اس کا. تمام حضرات سے چند باتیں ہیں جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو جیسے ابھی ہم نا ڈینگی کی بات کر لیتے ہیں. ڈینگی کا جو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کمنگ سیزن میں یعنی کہ 1 مہینے بعد، ابھی بھی لیکن 1 مہینے بعد اس کا پیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور خدا نخواستہ وہ علاقے جہاں پہ صفائی ستھرائی کا انتظام اتنا اچھا نہیں رکھا جاتا یا ڈینگی سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کی جاتی، ان جگہوں پہ اس مسئلے کا جو ہے نا یعنی اس مرض کا زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ ہوتا ہے. الحمدللہ بختئی میں نے دیکھا یہاں پہ گلیاں وغیرہ صاف ہیں، یعنی یہاں پہ میں نے کوڑا اس طرح سے کہیں باہر نہیں دیکھا زیادہ تر، جو کہ بہت ہی ایک خوش آئین بات ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پہ آ کے. آپ آئی ایم شیور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہے ڈینگی مچھر کیا ہے، ڈینگی کا بیماری کیا ہے اور اس سے بچنے کی تدابیر کیا ہے. وہ لوگ جن کو نہیں پتہ ان کے لیے ہم تھوڑا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ ہم نے اپنانی ہے، جو کہ کرنی ہے، اور کچھ ایسی عادات ہیں یا کچھ ایسے بیہیویئرز ہیں جن کو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو فی الحال ان پہ بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے جو کہ کرنی ہے، کرنا یہ ہے کہ آپ نے خود یعنی کہ آپ یہاں پہ جتنے بھی حضرات آئے ہیں، آپ نے یہ باتیں جا کے اپنے گھر میں ضرور دہرانی ہے. اپنی خواتین سے، اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ نمبر 1 سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ فجر کے ٹائم پہ اور جو غروب آفتاب کے ٹائم پہ زیادہ تر یہ جو ڈینگی مچھر ہوتا ہے یہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو اس وقت اپنے آپ کو بچانا ہے. وہ کیسے ہم بچا سکتے ہیں؟ مچھر بھگاؤ یعنی کہ ماسکیٹو ریپیلنٹ ایک لوشن میں جیسے فار ایگزامپل ماسپیل ہو گیا، ماسپیل اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزوں کا استعمال کریں. خاص طور پہ یہ
सूरज निकलने के टाइम और सूरज के गुरूब होने के टाइम। दूसरी बात कि जो एक होता है ना हाफ स्लीव्स, फुल स्लीव्स यानी कि पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहने। गर्मी में आई नो कि हम बच्चों को पहना जो है निकर वगैरह पहनाना ज़्यादा वो पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनको पूरे पाजामे और पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहनाए, ख़ास तौर पे ये जो 1 महीना बाद सीज़न आएगा उसके अंदर। और अपने घरों में पानी जो है वो खड़ा ना होने दें, ठीक है, चाहे वो गमले हैं या कोई भी ऐसी जगह है या आपके आसपास में दुकानें हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल टायर वगैरह का काम करती हैं, तो वहाँ पे या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे पानी खड़ा होने का अंदेशा हो, उन जगहों को पानी खड़ा ना होने दें, उसकी पानी के खुश्क होने का एहतमाम करें। और इसके अलावा जो है आपको पता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को डेंगू हो जाए, बुखार डेंगू बुखार हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि उस बंदे का कोई इलाज नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसका तो कुछ नहीं हो सकता। खुदा न खास्ता होना ये चाहिए कि अगर कोई अलामात ज़ाहिर हों, ठीक है, तो आप फ़ौरन से जो है इसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, ठीक है। हमारा कभी कभार ऐसी गलती हो जाती है हम लोगों से कि हम डॉक्टर के पास बाद में लेके जाते हैं, पहले थोड़ा टोटके कर लेते हैं कि किसी कावा पिला दिया, कोई कुछ कर दिया, तो ऐसे नहीं करें। प्रॉपर डॉक्टर के पास लेके जाएं, टेस्टिंग उसकी हो, डायग्नोसिस हो जाए, फिर आप उसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाई वगैरह दें। और खुदा न खास्ता अगर किसी को डेंगू हो जाए तो आप इस बात का भी ख्याल रखें कि वो जो बंदा है उसको प्रॉपरली आइसोलेट इस तरह से कर लें कि उसको नेट से, यानी कि अगर वो सोए भी तो उसको नेट से ढांप के, वो जो जाली होती है उससे ढांप के, ताकि जो मच्छर, अगर वो मच्छर उसको काट के दोबारा किसी और बंदे को, हेल्दी बंदे को काट लिया तो उस बंदे को भी डेंगू होने का खतरा है। और वैसे भी अगर खुली फ़िज़ा में आप जो है, मैंने देखा है कि यहाँ पे जो है खुले खुले घर बने में अगर आप चारपाई वगैरह पे या खुली हवा में सोना पसंद करें तो नेट का इस्तेमाल करें, ठीक है, जाली का इस्तेमाल करें, ताकि जो है मच्छर के काटने से महफूज रहे। जो है आप में से किसी का कुछ सवाल है इस हवाले इस हवाले से? आप तो ये वैसे भी इस हवाले से अगर किसी का सवाल है वो कर लें, तो बाद में कोई मैडम इसके बाद आपकी, हाँ जी मैडम, हम ये सवाल करना चाहते कि अगर हिफाजती तदाबीर तो हम कर लेंगे, लेकिन इसके तदारत के लिए जो दवा पाउडर वगैरह इस्तेमाल हो तो हमारे पास होता ही नहीं है। तो इसके लिए अगर आप कुछ कर सकती है, आप कर सकती है इस टाइम। अच्छा, तो अगर आप करेंगे तो हमारे हर एक घर में हम पहुंचाए तो कुछ ना कुछ तो अफाका हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि एक स्प्रे होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, मच्छरों का वहाँ पे अफजाइश के लिए बहुत एक आइडियल इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे स्प्रे किया जाता है। आपने देखा होगा, काफ़ी सोशल मीडिया पे देखा होगा, आपके आसपास होता होगा। लेकिन उस चीज़ को ना, वो जो स्प्रे होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है। खतरनाक से मुराद अगर खुदा न खास्ता किसी को दमे का मसला है, सांस का मसला है, तो वो जो स्प्रे होता है ना, वो बच्चों के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। तो हम जो है कोशिश यही करते हैं कि अपने लेवल, इंफरादी लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा बचाव की तदाबीर करें। जहाँ तक स्प्रे की बात है तो आप नाज़िम साहब के थ्रू एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें और हम इंशाल्लाह TMA के थ्रू वहाँ पे स्प्रे करवाएंगे, ठीक है। उसके लिए जो है स्प्रे की जिम्मेदारी को TMA की होती है, ठीक है, और हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में उन जगहों को फिर वहाँ पे भिजवाते हैं टीम को, ठीक है। लेकिन मैं बहैसियत एक शहरी के, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि वो जो स्प्रे, क्योंकि इतना ज़्यादा वो सख्त होता है, तेज़ होता है कि वो बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए और बूढ़े अफराद के लिए, या वो जवान लोग जिनको सांस का मसला है, वो काफ़ी उनसे ख़राब हो जाता है, वो मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ज़रूर वहाँ पे हम स्प्रे करवाएंगे जिन जगहों पे ज़रूरत है, जहाँ पे आप समझते हैं कि गंदगी बहुत ज़्यादा है और मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूर उन जगहों पे हम स्प्रे करवाएंगे। और फिर ये जब मच्छर काट जाते किसी को, बच्चे को या औरत को, मर्द को, किसी को, तो वो सफ़ेद अलामत क्या होते हैं? क्या होंगे, क्या मुझको क्या होता है कि जब किसी को काटे पता नहीं चलता क्या है क्या नहीं, तो हम उसको डिस्प्लिन या कोर्ट में हो जाता है। ये अलामत क्या होंगे ताकि हम समझ सके कि ये क्यों। अच्छा, वो जो बुखार होता है ना, एक जैसे नॉर्मल बुखार होता है ना, किसी को हुआ, किसी
आदत है, आप जब स्प्रीन देते हैं, पैनाडॉल वगैरह देते हैं, वो ठीक हो जाता है, लेकिन इसका बुखार दोबारा होता है, ठीक हो के फिर दोबारा हो जाता है, ठीक हो के फिर दोबारा हो जाता है। तो आप अगर देखें कि एक दिन में इस तरह का बार एपिसोड हो रहा है, बुखार हो रहा है, ठीक हो रहा है, खत्म हो रहा है, दवाई देने से फिर हो रहा है, फिर आप जरूर डॉक्टर के पास जाइए। बिल्कुल, बुखार की तो अलामत ही वीकनेस है, जो जब बार बुखार होगा तो आप देखें ना किसी वीकनेस हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तो इस तरह से फिर आप डॉक्टर के पास लेके जाएं और उसको प्रॉपर टेस्ट जो है ना, ठीक है डॉक्टर भी कभी कभार कह देते हैं कि डेंगू है, लेकिन जब टेस्ट कराओ तो नहीं होता, तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है जी, ठीक है। और टेस्ट के बाद आपने सुना होगा कि डेंगू के अंदर जो है ना प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। अब प्लेटलेट हमारे खून में वो सेल्स होते हैं, वो खुलिए होते हैं जो कि खुदा न खास्ता किसी को चोट लग जाए तो वो जख्म भरने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो डेंगू जिसको वो जो उस बंदे को एक तो रेस्ट करना चाहिए कि वो कोई इस तरह का काम ना करे जिससे चोट आने का खतरा हो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर प्लेटलेट्स की तादाद बहुत कम हुई होती है, तो जख्म भरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर रेस्ट और जाली का ख्याल रखें कि अगर खुदा न खास्ता किसी को डेंगू हो जाए तो ये चीज़ें हैं, घबराने की बात नहीं है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। और तो अच्छा, डेंगू रिलेटेड अगर कोई मसले नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो आप लोग और भी कोई अगर आपकी सवालात हैं, कुछ मसाइल हैं, उनके ऊपर बात हम कर सकते हैं। लीडर साहब, दुकानदार के पास ये हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बड़ा मसला इनका ही है, इसके बारे में कुछ महंगाई तो वैसे अल्लाह की तरफ से है, लेकिन इधर थोड़ा सा उससे बढ़कर है, तो उसके मुताबिक देना मतलब है दुकानदारों को आपकी तरफ से हदायत हो जाए ताकि वो नफनामा लगाएं और उनका रेट चेक किए जाए, क्योंकि ये हमारे ऊपर जोर देते और हम कुछ आगे कर लेंगे। ठीक है, नर्फनामा नहीं है। और फ्रूट वेजिटेबल किसी के पास नहीं होता या फिर सिर्फ ये जो हरियाणा वाले होते हैं किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। कॉस्ट उनकी बढ़ जाती है जब इतनी दूर से लाते हैं, लेकिन वो कॉस्ट बढ़ने के बाद भी काफ़ी हद तक उसमें डिफरेंस है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा बहुत ज़्यादा जी, अभी आटे के मुताबिक से बात करके। अच्छा, एक तो नर्फनामे का मुनाफाखोरी का हो गया, और आपने आटे की तस्दीक के बारे में कहा जी। एक मैडम रास्ते बहुत तंग है और रास्ते में लोगों ने रुकावटें बहुत देखी, जो मेन रास्ते हैं उधर से गाड़ी चला रहे, किसी टाइम भी हमारे पास प्रेगनेंट जनानी होती है, तो वो हमें बहुत टेंशन होता है, कई दफ़ा वो ज़ाया भी हो चुके, लेकिन इस पे कोई भी गौर फिक्र नहीं करता। हमें इतने, जब हम उधर से आते हैं तो इतने हमें परेशानी हो जाती कि तस्वुर भी आप नहीं कर सकते। उसके अलावा नाजायज़ जगहों पे अभी एक इधर नज़दीकी स्कूल है, तो उस पे रास्ते पे, क्योंकि जो गवर्नमेंट का रास्ता है उस पे लोगों ने रखे कि भाई गवर्नमेंट का नहीं हमारा रास्ता, हालांकि वो पता है उस पे गैस है, बिजली है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो किसी को आने नहीं देते, ऐसे रास्ते भी है। तो इस पे लाजमी इस पे नजर करम आप करें। ठीक है, अभी बिल्कुल आपने इस चीज़ का काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ना चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई। मैं अभी खुद भी आ रही थी तो रास्ता वाकई में उसका मसला था, और मेरी भी जो है ना वहाँ से गाड़ी नहीं होती, तो मैं यहाँ से पैदल विजिट कर रही थी, जो कि मसले की बात नहीं है। लेकिन जो आपने बात की, बीमार ख़वातीन व हज़रात हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं और बुज़ुर्ग हज़रात हो सकते हैं, तो उनके लिए वाकई में बहुत मसले की बात, और कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है। लेकिन इसको बोलते हैं तजावुज़ात, जिसको हम इंक्रोचमेंट भी बोलते हैं। मैडम इधर नाजायज़ तजावुज़ात किसी के नहीं है, इंक्रोचमेंट करें मतलब किसी का घर तो नहीं हम गिरा सकते ना, अगर किसी का रास्ते में कोई चीज़ रुकावट होगी तो फिर उसको कर सकते हैं। रुकावट से मुराद होती है स्पीड ब्रेकर, रुकावट है, पत्थर डाल दिए रुकावट है, ईंटें डाल दी रुकावट है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की जो रास्ता है, यानी गली है फॉर एग्जाम्पल, वो 10 फुट की है या चले 20 फुट की है, आपने उसको इतना, एक ने इधर से जगह मारी है, एक ने उधर से जगह मारी है और उसको 4 फुट का कर दिया, ठीक है, ये भी तजावुज़ात है, ये भी नाजायज़ है, ठीक है। इसके ऊपर भी जो है ना एक्शन लिया जा सकता है। इसके ऊपर भी इवन अगर आपको किसी की दीवार भी गिरानी पड़े ना, गिराई जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो इंक्रोच कर रहा है। किसको इंक्रोच कर रहा है? सरकारी ज़मीन को। और एक तहसील के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर सरकारी ज़मीनों का रखवाला या रखवाली होती है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर साहब। हम बिल्कुल जो है इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन आपको मैं वैसे देखिए, अभी हमारी आपस की बात है, ठीक है, हफ्ता ही जो मेरा पहले दफा आना हुआ ना यहाँ पे, मैं पब्लिक की बात अगर आपको
बताऊं, कहीं भी पूरी पब्बी तहसील में मैं कहीं भी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन करती हूँ ना, आप यकीन करें मैं ऑफिस तक नहीं पहुंची होती, मुझे कॉलें आना स्टार्ट हो जाती हैं कि ये मेरे कज़न हैं, ये मेरे चचा हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे, आप समझ रहे हैं ना। बिरादरी सिस्टम का बहुत फ़ायदे हैं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसले मसाइल जिरगों और इन चीज़ों के थ्रू हल हो जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि वो कहते हैं कि जी मैं फ़लाँ साहब का, फ़लाँ पॉलिटिशियन का, फ़लाँ जर्नलिस्ट का, या किसी भी उसका मैं नाम नहीं लूँगी ख़ास तौर पे, मैं उनका रिश्तेदार हूँ, तो इसकी वजह से मुझे आप छोड़ दें, ठीक है। तो देखें, जहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि कानून से बालातर एक शख्स है या एक कौम है या एक कोई भी चीज़ है, उस वक्त देखिए फिर आप ये सरकार को तो नहीं कह सकते कि सरकारी अफसर हमारे मसाइल को सॉल्व नहीं, क्योंकि आप उसको मौका नहीं दे रहे सॉल्व करने का। देखिए मेरा यहाँ पे जो है ना, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरा यहाँ पे कोई पर्सनल रिलेशन रिश्तेदारी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे जो भी काम करूँगी देखूँगी कानून की नज़र में ये गलत तो नहीं है, ठीक है। अगर वो गलत नहीं है तो फिर मैं उसके ऊपर एक्शन लूँगी और लेना चाहिए, क्योंकि मुझे इस बात की सरकार तनख्वाह दे रही है। गरीब किसी का हक मारा जा रहा है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका हक उसको दिलाऊँ, क्यों? क्योंकि इस बात की सरकार मुझे तनख्वाह दे रही है। अब हमारे कल्चर में बाहर के मुल्क में आप चले जाएं, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का भी बच्चा हो, उसकी भी नहीं मानी जाएगी, उसको भी उसी तरह लाइन में खड़ा, उसको भी उसी तरह तमाम रेगुलेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो अभी मैं आपके सवाल के जवाब में ये बात कर रही हूँ कि देखिए मसले हमारे अंदर भी हैं, ठीक है। अब एक्शन लेने को तो हम आ जाएं, ठीक है, लेकिन अभी क्या आप में से सारे लोग मुझे इस बात की यकीन दहानी दिलाएंगे कि अगर कल को इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है जो कि आपको भी पता है गलत है, फौरन फोन आएंगे, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो आप खुद मुझे बताएं कि इसका क्या वे आउट, कि क्या मुझे आप यकीन दिलाएंगे कि आप में से बैठा है यहाँ पे कोई बंदा भी अपना ताल्लुकात इस्तेमाल नहीं करेगा और वहाँ पे नहीं कहेंगे जी इन्होंने इस तरह से क्यों कर दिया? इंशाल्लाह कोई नहीं कहेगा, इंशाल्लाह कोई नहीं कहेगा। आप देखिए आप लोग सब यहाँ पे माशाल्लाह मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं ना, ऐसा ही है। तो बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। बीमारों का देखिए उनका सबसे ज़्यादा राइट है ना कि उनको एक्सेस मिले अस्पताल तक, अस्पताल या कोई भी आपकी बेसिक हेल्थ फैसिलिटी है। तो अभी जो है ज़रूर इसके ऊपर जो है हम देख लेते हैं कि कितनी तजावुज़ात हैं, किस लेवल की हैं, ठीक है, क्या वहाँ से गाड़ी गुजर सकती है, नहीं गुजर सकती। तो इस चीज़ को जो है ना हम नोटिस में लिया, ठीक है। अभी एक खंबा लगा है, एक हफ्ता हुआ है, वो तकरीबन खंबे के हम खिलाफ नहीं, खंबा लगना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा रास्ते के बीच में रुकावट बन रही है उसको, तो वो अगर थोड़ा सा पीछे लग गया हो तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि अभी फिर उसको निकालना और फिर लगाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए यही बात है ना, प्लानिंग की भी कमी है हमारे जो है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो यहाँ पे काम होते हैं पैसा लगाते हैं ज़रूर, लेकिन थोड़ा अगर दिमाग भी लगा लें तो उसमें ये होगा कि हमें बार बार वो चीज़ उखाड़ के उस पर पैसा खर्च करना वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी जो है ना हम देख लेते हैं, अगर आप उस तरफ की हम जब अभी ये तरक्याती कामों में अक्सर ये रास्ते बनाते हैं तो कुछ लोग वैसे कसूर में इस तरह रुकावट डालते हैं कि इधर ना आए तो वो हम आपके नोटिस में लाएंगे। तो कोई अभी एक कटा हुआ खंबा वहाँ पे लगा हुआ है, उसको निकालने के लिए मसला बना हुआ है, वहाँ के जो लोग हैं आसपास के घरों में वगैरह निकालने नहीं, तो इस खंबे में उसका पता नहीं उनका कोई ज्यादा मसला है या क्या मसला है, तो ये भी आप नजरसानी करने अगर आप देख लें। अभी मैं मौके पे देख भी लेती हूँ क्या सिचुएशन है, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी इधर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लड़ाई झगड़े की इतने नहीं है, लेकिन मतलब है कि अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे मैंने बख्तई की आवाम को बहुत मुहस्सिब पाया है। सबसे बड़ी उसकी एक दलील, उसकी एक जो उसका सबूत है वो यही है कि यहाँ पे सफाई का इंतजाम रखा जाता है, ठीक है। एक फर्स्ट इम्प्रेशन जो आता है वो ही बहुत अच्छा आता है, और तो कोई मसला नहीं है यहाँ पे। नहीं दूसरा मसला बेटा ये रास्ते कानूनी कटाई है, अगर आप मुझे पहले भी इस तरह वो दिया था तो उस पर हमने काम किया था, शाम में लगी रोसी रोसी उसके बावजूद अभी तो
कुछ कमी हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है ना लकड़ की कटाई हो रही है। ये जो सामने तरफ है हमने बड़ों से सुने जब ऊँट भी जाता था वो भी नजर अभी जब बकरी भी जाती है तो सारा कोई नजर आता है। ये तो बहुत देखिए, ये हमें बच्चे ना बहसीत शहरी हमें चाहिए कि इसको जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त मज़ीद लगाएं, बजाय इसके कि जो पहले से लगे हुए हैं उनको काटें, क्योंकि हमें अगर अभी सांस लेने को जो मिल रही है ना थोड़ी साफ हवा, ये नहीं दरख्तों की वजह से, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये वसीला बनाया है। आप खुदा ना खास्ता इमेजिन करें, अभी तो अल्लाह का शुक्र है बहुत आराम है। जब कोरोना की सिचुएशन थी और आपने देखे होंगे कि एक ऐसे पेशेंट्स होते थे जिनको कोरोना हो चुका होता था, जिनको हवा मतलब सांस लेने में मुश्किल होती थी क्योंकि उनको उनके लंग्स इफेक्टेड थे, तो वो उनकी ऑक्सीजन सिलेंडर लगता था, ठीक है। खुदा न खास्ता ये जो हम कर रहे हैं ना दरख्तों की कटाई, ठीक है, आपको 2-4 पैसे मिल जाएंगे फॉर द टाइम बीइंग, वक्ती तौर पे आपको मिल जाएगा, लेकिन अल्लाह ना करे आप अपने बच्चों के लिए पता कैसा एक मुस्तकबिल कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं कि आपके बच्चों को ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ना अपने साथ बांधना पड़े और उससे उनको ऑक्सीजन लेनी, खुदा न खास्ता। और ये वक्त दूर नहीं है, आप ऐसा ना समझें कि मैं आपको बता रही हूँ कि आज से 200 साल बाद इस तरह की सिचुएशन है कि नहीं, ये अभी भी हो रहा है। आप चले जाएं, बड़े किसी भी शहर में चले जाएं, वहाँ पे लाहौर में चले जाएं, ज़्यादा आप किसी और चाइना ना जाएं और किसी कंट्री में ना जाएं, लाहौर में चले जाएं, वहाँ पे बंदा सांस नहीं ले सकता जब इस तरह का मौसम आता है, ये स्मॉग वाला मौसम आता है, ठीक है। तो ये बाहर से कोई नहीं, बिल्कुल ये हमारे अपने अंदर है। आप यकीनन देखिए, आप नाज़िम साहब बकरे की पॉपुलेशन कितनी है? 8,000 तो कोई पॉपुलेशन नहीं है। ये आप ही की रिश्तेदार, किसी का फर्स्ट कजन होगा, किसी का दूर के एक्सटेंडेड फैमिली में होंगे, तो आपको चाहिए आप इसलिए हमने कई दफ़ा एक्शन लिए, लेकिन वही बात आपकी कि वो जाते हैं इधर से थाने जाते हैं, वहाँ से अच्छा यहाँ एक और बात, एक्शन, अभी आपने बहुत अच्छी बात की, एक्शन लेने से याद आया कि एक्शन थाने वाले नहीं लेंगे, एक्शन मैं लूँगी। एक्शन इसलिए मैं लूँगी क्योंकि कानून ने मुझे फॉरेस्ट मैजिस्ट्रेट बनाया है, ठीक है। इस डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के अंदर फॉरेस्ट मैजिस्ट्रेसी मेरे पास है, ठीक है। वो जो भी लोग होंगे आप उनको गिरफ्तार करें, चाहे खुद करें, पुलिस के थ्रू करवाएं और उनको मेरे पास पेश करें, ठीक है, इत्तला करें, हम पुलिस को वो करेंगे, ठीक है। लेकिन अच्छा पता क्या होता है कि खुद पकड़ के पेश करें, वो इस वजह से जब तक पुलिस आती है ना वो लोग गायब हो चुके होते हैं, ठीक है। और आप लोगों में से सबके पास आई एम श्योर, अब अल्लाह का शुक्र है सबके पास मोबाइल फ़ोन तो है, ये वाला मेरे से ज़्यादा अच्छे फ़ोन होंगे सबके पास, ठीक है। तो आप वीडियो बनाएं, ठीक है, वीडियो बना के प्रूफ के साथ, ताकि ये ना हो कल को बंदा आप पकड़ के लेके आए वहाँ पे और आपको कहेंगे दूर भी है ना, पुलिस के आते हाँ, पुलिस के आते जो है ना आपके खुद, और कभी कभार ऐसा होता है, देखिए मैं मानती हूँ बहुत मसले मसाइल हैं, आपने अगर खुदा न खास्ता किसी को पैसे दे दिए, वो भी चुप, तो सारा मसला खत्म, ठीक है। बहुत से महकमों में ऐसे हो रहा है ना, सही है। तो हम इस तरह चाहते हैं कि ये इलाका है जो माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने इसको इतना अच्छा मौसम दिया है, ठीक है, ये कायम रहे, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी, ठीक है। तो नाज़िम साहब इसके ऊपर जो एक्शन है ना, यही होगा कि टाइमली एक्शन, टाइमली उनको अरेस्ट करना है और उनको मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करना है, ठीक है। और जी फरमाइए। अच्छा मैडम, हमारे इधर वोल्टेज बहुत कम आता है, तकरीबन 60-64 पे आते हैं। एक खंभों का भी नोट करें, हाँ। खंभों की लोकेशन का, हाँ। तो मैडम खास बात आपसे, मैं जो भी करूँ मैं अपने आवाम के लिए कहूँगा, इंशाल्लाह कोई मेरा इंफरादी नहीं होगा। एक तो ये कि लोग कुंडा डालते हैं, कुंडा आप जानती है ना, यानी बिजली के बगैर चोरी, तो ये इसके खिलाफ हम लोग जाते हैं, लेकिन हम इस चीज़ से भी डरते हैं कि भाई मैं नाज़िम साहब का नाम लूँ या इसके बंदे को पकड़ूँ तो ये कल मेरे साथ दुश्मनी करेगा। तो आप इसके साथ कोई ऐसा तरीके से रिएक्ट करें ताकि हमें कोई टेंशन ना हो, चोर भी पकड़े, हाँ इंशाल्लाह मेरे सामने कोई होगा, मुझे किसी का खौफ नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह का खौफ रखूँगा, आवाम की खिदमत के लिए मैं उसका नाम भी लूँगा, उसको पकड़ूँगा भी,
اس کے علاوہ ایک کی بجلی کا مسئلہ ہوگا, دوسرا پانی کا. پانی کا بہت پرابلم ہے. ہم تو سر روپے نہیں بھرتے ہیں. ہماری زنانیہ اس تکلیف سے گزرتی ہے. سرکاری زنانیہ سے غیر قانونی کنیکشن ہے. ہاں بالکل. جو ریکویسٹ کیے کہ اس کو کاٹ دے, ٹیم بھیجے اس کو فوراً موقع پہ ہی کاٹ دے. لیکن میڈم جس کا گھر ہو اس کے سامنے سے اس سے غیر قانونی ہے. مطلب ہمارے پاس تو 50 پوائنٹ جو ہے نا رجسٹریشن ہے اور لگے ہیں 400 پوائنٹ لگے, تو 350 کے ساتھ مطلب پیپر گیند آتی ہے, میں کاروائی کرے اس کو کاٹ. اور میڈم ہمارا جو زمینی رقبہ ہے تو وہ تقریباً 14 کلومیٹر پہ محیط ہے شاہکوٹ بستی کا. اس میں ہمارے جنگلات ہیں اور ہم اس کے کٹائی میں ان چوروں کے ساتھ ہم شانہ بشانہ شامل ہیں. اس میں کوئی خوف و خطر نہیں. ہم نے ان سے پیسے دیے ہوئے, ہم نے ان کو بولے کہ ہماری زمین کاٹو. ہمارے بڑوں نے رکھے تھے, لیکن پہلے ہمیں پکڑے, اس کے بعد آپ چوروں کو پکڑیں. جب تک آپ مجھے نہیں پکڑیں گے آپ چور کو نہیں پکڑ سکتے. محمد بلال. ٹھیک ہے بلال صاحب نے دیکھیے بہت ایک جو ہے نا سیریس باتیں کی ہیں کہ ہم خود جو ہے اس میں مدعے تھے. سب سے بڑی بات ہے نا, غلطی ہم تب سدھار سکتے ہیں جب ہمیں غلطی کا احساس ہو. ٹھیک ہے, اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے میں چوری کر رہا ہوں, اس کو فکر ہی نہ ہو, اس کو پرواہ ہی نہ ہو کہ میں کسی کا حق مار رہا ہوں یا میں غلط کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے تو اس نے کیا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے یا اس نے کیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. ٹھیک ہے, تو بہت لیکن جیسے آپ نے بات کی نا کہ اگین وہی والی بات برادری سسٹم. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ فلاں بندہ کسی کا جاننے والا ہے, فلاں بندہ کسی کا جاننے والا, گروپنگ ہو گئی. ایک نے کہا کہ میں اپنے گروپ والوں کے مفادات کا تحفظ کروں گا, ایک نے کہا میں اپنے گروپ والوں کے مفادات کا تحفظ کروں گا. دو گروپوں کے مفادات کی تو حفاظت ہو گئی. بیچ میں کیا رہ گئی عوام, وہ جو کسی پاورفل بندے, تنظیم, پارٹی یا کسی بھی گروپ یا قوم کے نہیں ہیں, ان سے تعلق نہیں رکھتے, وہ بیچ میں مارے جاتے ہیں. اور اسی طرح ہو رہا ہے, پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ صرف یہاں کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم یہاں کے لوگ ہیں, ہم یہاں کے لیے رسپانسبل ہیں, اس لیے ہمیں یہاں کے مسئلے سالو کرنے ہیں, چاہے پوری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کسی اور گاؤں میں اگر لوگ یہی کر رہے ہیں, بجلی چوری کر رہے ہیں, تو پھر بھی وہ غلط ہے اور آپ کا کرنا بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, کسی اور گاؤں میں بھی مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ کہہ کے جی وہاں پہ بھی تو پوری دنیا میں مسئلے ہیں تو ہمارا مسئلہ کون سا انوکھا ہے. نہیں, جہاں تک دیکھیے سرکار کی بات ہے, میں پہلے بھی ابھی یہی بات کری تھی, سرکار کا جہاں تک ہے بالکل سرکار ایکشن لے گی اور لینا چاہیے, لیکن سرکار کبھی بھی اکیلے نہیں چل سکتی جب تک عوام کی سپورٹ, عوام کا تعاون نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جیسے آپ کو میں نے پہلے کہا کہ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ کو جیسے میں نے درختوں کی کٹائی کی اس پہ کہا کہ جی ویڈیو بنائیں تاکہ ہم اگر کسی بندے کے خلاف ایکشن لیں ہمارے پاس پراپر ثبوت ہو. اسی طرح اگر کسی کی آپ سمجھتے ہیں, آپ نے دیکھا, آپ کے پاس پروف ہے, کنڈا لگا بجلی چوری کر, وہاں پہ اس کا ثبوت بنائیں, اس کا ویڈیو بنائیں. اور جیسے جو آپ نے باتوں کی طرف نشاندہی کی تو آپ کائنڈلی اس کا ثبوت اکٹھا کریں تاکہ اس کے اوپر, اب آپ یقین کریں ابھی آپ کے اگر کوئی قصاب ہوں گے یا ویسے ہم پبی پورے پبی میں قصاب کی دکانوں پہ جاتے ہیں نا, ہم جا کے پوچھتے ہیں ہاں جی گوشت کس طرح بیچ رہے ہیں, وہ جی کہتے ہیں ہم 400 کا بیچ رہے ہیں. کوئی بیچ رہا ہے آج کل, کوئی 400 کا گوشت بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے, مشکل ہے کہ 500 کا بھی بیچ رہے ہو, لیکن ہم جاتے ہیں 700-800 کا بھی رمضان المبارک میں تو لوگوں نے اس سے بھی زیادہ بیچا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے, لیکن ہم پھر اس بندے کو جا کے کچھ نہیں کہہ سکتے جو ہمیں کہتا ہے کہ جی 400 کا. ہم پہلے پھر اس طرح سے کرتے ہیں کہ لوگ یہاں پر یہی رواج ہے نا, اگر ابھی میں دودھ کا ڈبہ کسی سے لوں اور وہ مجھے مہنگا دے دے, میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے اس کا چٹ دے دے, رسید دے دے. وہ کہتے جاؤ جاؤ کسی اور سے لے لو, اور کدھر میں جاؤں گا, اس مطلب ہے یا تو فریاد آپ کے پاس پہنچاؤں گا یا ناظم کے پاس پہنچاؤں گا. تو ناظم نے تو جو کرنا ہے پھر یہی کیا کہتے ہیں کہ ناظم غلط کر رہے ہیں, میڈم جی غلط کر رہے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میں تو گاؤں والے کے اس سے جو ہے نا آپ کی اس سے فائدہ لینا چاہتا ہوں کہ ہم دکانداروں کو 2 دن کا ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ اپنا نرخنامہ لگائیں. دودھ کا خاص کر ریٹ جو ہے نا وہ ٹھیک اپنے جگہ پر رکھیں, انڈے کا ریٹ ٹھیک جگہ پر رکھیں, نہیں تو پھر ہم سرکاری طور پر ہم جو ہے نا ان کو انڈا اور دودھ یہاں پہ رکھیں گے اور ان کو سرکاری ریٹ پر ہم دیں گے. آپ کی پیج سے نرخنامہ روزانہ شاید ہوتا ہے, ان کو لگانا چاہیے. لیکن بالکل یہ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو یہ
کے خلاف ایکشن لے لیں اور ہم ان کو سرکاری ریٹ پر جو ہے اسی سے پھر مہیا کریں گے لوگوں کو. ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے کریں. ابھی انشاءاللہ میں وزٹ کر لیتی ہوں ادھر جو ہے آپ نے ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے ابھی ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے سارے دکانیں یہاں پر بند ہیں کیونکہ انہوں نے سنا ہوگا میڈم آ رہی ہے تو بس جو ہے تو بس وہ اکبر بکچی والا نظام ہے کہ بھائی پراری بس غائب ہوں گے اور جو ہے نا ہم کیا کریں. صحیح بس آپ اس طرح سے کریں اس کی بھی اگر کوئی ویڈیو پروف جو ہے وہ کر لیں تاکہ ہم بس CNIC کلیکٹ کر لیں کہ بعد میں ہمارا کام اس کو ہم فائن کریں. ہم ان کو جو ہے ناجائز منافع خوری کے اس میں ان کے اوپر 72 گھنٹے کی اجازت کر رہے ہیں 72 گھنٹے کی کیونکہ ہم خود میں لاہور میں رہ رہا ہوں اگر ہنڈا میں 2 روپے درجن زیادہ دے دیتے تو ہم 72 گھنٹے کے اندر چلے جاتے ہیں. ہم بالکل ایسا ہی ہے یہاں پہ تو ہم اندر کر لیں تو اچھا بہت زیادہ ہے ہم تو بالکل دس پر ہیں. وہ کہہ رہے کہ ہمارا بیٹا دور جا رہے پتہ نہیں آپ تک شاید آتا ہو یا نہیں آتا ہو کہہ رہے کہ ہم آگے پیسے دے رہے ہیں تو ہم صرف پتہ نہیں صرف دے رہے ہیں. کس کو دے رہے تھے کہ وہ اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں پیسے پتہ نہیں کس کو دے رہے ہیں. لیکن اچھا آپ کیا بات کر رہے سروے ہوا تھا 3 جگہ ہے ادھر ہی پورے کونسل کہے گی آپ ہونا چاہیے. میں میڈم جی میں 50 لیکن یہ لوگ جو ہے نا ناجائز منافع خوری کر رہے 55-60 روپے دے رہے تو یہ غریب لوگ ہیں اور ان کو تکلیف ہے. یہ ہمارا گاؤں ہے چھوٹا سا گاؤں ہے تو جو نہیں 10-15 ہزار آبادی یہ 7 بنا ہوا ہے جناب سپر مارکیٹ بنا ہوا ہے. اس پہ کتنا خرچہ آ جائے گا 5 روپے آ جائے گا 10 روپے آ جائے گا 10 کے بجائے 50 روپے اور 100 روپے کی چیزیں بیچتے ہیں. دیکھا کہ مطلب قانون ہے نا سمجھ نہیں آتی ہے. 1 روپیہ 2 روپیہ یہ ذمہ بند ہے ناظم صاحب ان کو ہونا چاہیے. یہ بتائیں کہ کل ہم نے تو 100 بار لوگوں کو فریاد کی لیکن ہمارا کوئی مجھے بتائیں میں نام دوں گا آپ کو کہ بھائی ادھر دکاندار کتنے بیٹھے ادھر ہے دکاندار چپ کیوں کریں گے اس لیے تو ایک ہی دن آیا ہوا ہے باقی آیا نہیں اس کی وائف جو ہے نا وائف کی وجہ سے آئے اس کی نمائندگی کے لیے آئے. ٹھیک ہے تو آپ تمام حضرات سے دیکھیے ہم نے جب تک خود اپنے ایریا کے ذمہ داری نہیں لینی تب تک کوئی باہر سے آ کے نہیں جو ہے نا ہمیں ہمارے حالات کو ٹھیک کرے گا کیونکہ قرآن میں بھی ہے وہ لوگ جو ہے نا خدا ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو ابھی ہم ایسا کریں گے کہ یہاں پہ 2-3 جگہیں آئیڈینٹیفائی کر لیں گے جہاں ہم گھڑا کھدائی کریں گے اور اس کے اندر آلائشوں کو ڈال کے اس کو بھر دیں گے. ٹھیک ہے اور وہ جو جگہ ہوگی وہاں پہ اتنی جو ہے وہ کلٹیویشن نہ ہو یعنی ادھر اس جگہ کے اوپر کاشت نہ ہو رہی ہو
वो जगह हम आइडेंटिफाई करेंगे, किसी की जमीन हॉस्पिटल नहीं हो रही है, हाँ। हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो 2-3 जगह आइडेंटिफाई कर लेंगे ताकि हमारी गलियों में इस तरह से कुर्बानी के बाद जो है ना बदबू फैले, ना ताफुन फैले, ना बीमारियों का सबब बने। और हमारी जो है जैसे माशाल्लाह से अभी वक्त साफ़ सुथरा है, इसकी सफाई हम इसी तरह से रखें, ठीक है। बल्कि अभी अगर कुछ जगहों पे कुछ गलियों में है भी मसले मसाइल कूड़ा वगैरह के, तो उनको भी हम करें। बाकी जहाँ तक बात आपने जो भी मसाइल की निशानदही की, इनको ज़रूर तरजीही बुनियादों पे हल किया जाएगा इंशाअल्लाह। वाटर कनेक्शंस की जहाँ तक बात रह गई, इलीगल वाटर कनेक्शंस की, इनके ऊपर भी हम जो है वो काम करेंगे। और बिजली के खंभों की और भी जो रास्ते की जो चीज़ें हैं, मैं इंशाल्लाह अपने पटवारी साहब को आइडेंटिफाई करें कि कितनी तजावुज़ आप हो रही, ठीक है। उसके ऊपर जो है पज़मा के तेरों ಎಲಕ ಹಾಗೆ ಬಸ್ ಓವರ್ ಕೈ ಹಾಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು 20 रुपए का बड़ा वाला का नहीं बस छोटा है, बड़ा दिखाओ, जल्दी करो, किधर है बड़ा? और ये रखा छोटे और बेच के बड़े बच्चा लगो देने चीची द्वार नहीं वेर का लाइट नहीं है। मैडम अभी बस वार्निंग करके दे देते हैं, एक दफ़ा अभी वार्निंग जो है करके ना, ये रेट लिस्ट दरनामा लगा होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अंडे, दूध, ये जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, ये जो रेट लिस्ट सरकार की आती है ना, अंडों के हवाले से रोज़ आ रही है, ठीक है। दूध की हवाले से खैर वो नहीं है, जो तो पैकेट वाला दूध है वो तो खुले दूध की होती है। पेट्रोल महंगा होता है तो उसके साथ देखिए, मुझे पता है आपका एरिया दूर है, लेकिन हर चीज़ पे 1 रुपया 2 रुपया, एक अंडे पे 10 रुपये या 5 रुपये लेना तो बिल्कुल ये तो ज्यादा होगी, ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये मसले नहीं है। हाँ, तो ये पता है किसमें आता है, ये नाम के जुमरे में आता है। अल्लाह ताला ने बहुत सख्त वही दी है कुरान। मैडम बस ठीक है भी आ गई है इतना, तो नेक्स्ट टाइम कोई होगा ना बस मुझे कोई कंप्लेंट है जैसे क्या नाम है इनके स्टोर का? निसार। ठीक है जी। एक मैं जरा दुकान को चेक जी। अंडे हैं यहाँ पे? कितना दे दें? 15 रुपए। ये मेरे लिए 15 रुपए, सबके लिए 15 रुपए। ये दे रहे 15 रुपए का, किधर गया? ये 15 रुपए का दे रहा है अंडा? हाँ, 15 रुपए का मिल रहा है यहाँ से। हेलो, आप कोई नहीं बोले, आज कर रहे होंगे, कल नहीं था हमारे साथ। 20 रुपया कह रहा है कि 20 कर दो। कभी 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 लाते हैं। अंडे किस तरह दर्जन है सरकारी रेट पे पता है? कितने का दर्जन है आज सरकारी? लाया है, मैं तो कह रहा हूँ हर वक्त लाते ही नहीं है, कल क्यों? नहीं 196 है 196 ले 200 रुपए लगा ले, ठीक है। 16 साढ़े 16 रुपए का अंडा पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो आप कैसे पता आज कर रहे लगाए हैं? आज लाते कभी कभी, हम रोज नहीं लाते, वो दिन बस उतना ही अंडा है। नफनामा किधर है इधर का? आटा चीनी कुछ है इधर? नहीं तुम क्या बेचते हैं? ये दूध के डब्बा दिखाई जरा, कितने का दे रहे हैं? पाव वाला 50 का है। मेरे लिए 50 है, सबके लिए 50 है, सबके लिए। इतना होता नहीं हमारे पास, हमारा टोटल काम है। जितना भी है उसको सही जो है ना, ठीक है। मुझे पता है कि थोड़ा दूर लाना है, सामान दूर से लाना है, लेकिन
1-2 रुपए से करना बनता है ना, ये 10 रुपए एक पैकेट में तो नहीं बनता मुनाफा। मैडम वार्निंग दे रही है तो मैडम ने कमेटी बना दी है, मैडम को शिकायत जाएगी तो फिर करेंगे इधर से शिकायत ना मिले। देखिए आपका ठीक है टोटल काम है, लेकिन कुछ लोगों के पास ये काम भी नहीं, ठीक है ना। सिगरेट कौन पी रहा है? वो चले गए, यहाँ पे बैठा हुआ चले गए। तो कुछ लोग जो है ना वो इससे भी ज्यादा उनके हालात खराब है, तो उनका भी ख्याल रखें, ठीक है। मुझे कंप्लेंट ना मिले, ठीक है, ओके। वालेकुम अस्सलाम। هغه خو ته وې چې 12000 په 3000 ملوي شي 3000 داسې کسانو ته شته چې هغه ته 500 روپے ملوي دا خو زیاته ده زار وسا دې بل وسا क्या मुश्किल, घर से उठा के लाए उसको, जाए चले विकास चेयरमैन को लेके आए घर से फौरन से। नाजिम साहब के ऑफिस चले, मैं ऑफिस उधर ही बिठाती हूँ। ठीक मैडम वो उधर आ रहे हैं। ठीक है हम तो कर सकते हैं नहीं, इसको 12,000 में पहले ही कुछ आता नहीं है आज के दौर में, और उसके बाद वो भी नहीं इनको दे रही। कोई रास्ता नहीं को देना, मतलब कौम का रास्ता ही होता है ना कि अगर वहाँ के घर है अगर आबादी तो उसके लिए रास्ता, लेकिन इनका नहीं है, मतलब रास्ता इस तरह का होता है लेकिन नहीं दे रहे। जो यहाँ से ये कह रहे हैं कि इधर से रास्ता दे दो, लेकिन इधर वाले कह रहे हैं इधर से चले जाओ, नहीं तो रास्ता एक बंदोबस्ती रास्ता होता है ना, यानी कि जो सरकारी रिकॉर्ड में कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब कोई छोड़ ही नहीं रहा, तो घर बना लिए लोगों ने, कुछ भी नहीं है, वैसे जमीन पड़ी हुई है। क्या हाल है आपका? जी नाम क्या है आपका? उमर हयात साहब, आप यहाँ पे विकास चेयरमैन जब शब्द कितने यहाँ पे मुस्तहिकीन है जिनको ज़कात आती है जिनके लिए? इससे पहले आपने काम किया था जमीनी और चंद मजदूर लोग आप लोग गए तो हमने उधर जमा किया, फिर उस नाम पे आते 100 काम जमा जब तक कितने लोगों के ज़कात? 100 लोगों के आते हैं? नहीं 8 आए थे जगह। अच्छा 8 के आए थे, कितने लोगों को दे दिए? 8 को दे दिए। कितने पैसे आए थे एक बंदे के? 12,000। कितने पैसे दिए हर बंदे को? 12,000। हाँ भाई लो, वो किधर है बंदा, उसको लेके आए के पास। दुकान में नंबर क्या? कौन तुम्हें उधर छोड़ दिया? क्या छोड़ के आए? कौन लेके आओ भाई चेयरमैन साहब का फोन, जल्दी से जो किसी को इमरान किसी को जवाब। वालेकुम अस्सलाम। मैडम दया जैसे तो बॉस मैडम जैसे आई तो बॉस को 12,000 है, हर महीने के आते हैं? 6 महीने। 6 महीने कर दिया, 8 महीने ये क्या बात? मतलब या तो सुहान का नंबर तो दे मुझे जरा, जल्दी करो। जब लो रोशा ले रोशा क्या ना भेजना है तो ये किसी बंदे को सही हो। शाहिद, कितने ऐसे बात कैसे आते हैं? अच्छा मुझे बताइए, आपके 12,000 आए, आप गए चेयरमैन साहब के पास लेने, कितने पैसे मिले आपको? सुमरा
con Jod Boshu, con el Boshu y el Morosín, Landaro y Kur, Agashi Kunden, mi pesero, y mi bedina mía, con la zona que dio por Sheket, con el pesero, y dicen ser por Sheket, con el Samada, Taka Siki, con Jod Ya usa para el Robidi. بیا اوس په دې ضرورت دي نو نشال مو ته وی بیا د وړي کو نو مو یا ته وایي نو چې کنده ته چکر دې کمیه پیسې روغلي دي موږ ته خپل خپل کارو کا نو مو دې وی چې څه دوه قسم دي چې تاسو په کې نشته دي ٹھیک نو بیا مو دې وی کنه راکه مو دې اطلاع روغلي چې تاسو په کې پیسې شته دي نو بیا یا ته مو دې چې نشته نو بیا دوه شته نو دې دغه شو کې پھر ہم نے ہفتے بعد پھر پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے پیسے نہیں آئے شاید نہ آئے ہوں گے مجھے نہیں پتا لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اطلاع دی کہ آپ کے پیسے آئے ہوئے تو میں دوبارہ سے گیا ان کے پاس مجھے اس آسان الفاظ میں یہ بتائیں 12,000 روپے آتے 12,000 روپے یہ جو صاحب ہے نام کیا ہے آپ کا رمیز صاحب کو 12,000 روپے آپ نے دیے کہ اس سے پہلے جو 3-4 سال ہوئے تھے دکان پہنچا پھر آگے اکٹھے تقریباً 42 سال پھر اس کے بعد آئے 8 آدمی اس 42 لوگوں میں اس کا نام نہیں تھا پتہ نہیں اس وقت آپ کا نام تھے اس کے پر یا کوئی اور تھا یہ ان کے پاس چلے گیا کہ اس میں سے چند نام نکالو اور میرا نام اس میں ڈال دو مجھے بتائیں ابھی 8 لوگوں کے پیسے کب آئے ہیں تقریباً 3 مہینے ہو گئے 3 مہینے ہو گئے وہ 8 لوگ کون ہیں اس کی ریکارڈ ادھر موجود ہے کدھر موجود ہے آپ کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں زکات لینے کے لیے مجھے ابھی 100 لوگوں کے نام بتائیں جو میرے پاس روز آتے ہیں 8 لوگوں کے نام آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے وہ تو اس کی بندی اگر آپ ریکارڈ چیک کریں جب تک چیک کریں چیک تو آپ بک کو پتہ چل جائے گا کدھر ہے چیک بک جو اس کے پاس ہے سبحان کے پاس سبحان کے پاس اس بندے کو 12,000 دیے اس کا نام اس میں نہیں تھا اس سے پہلے دیے شاہد کو دیے 12,000 ریکارڈ آپ چیک کریں یہ نام پہ آتے ہیں جس کے نام پہ آتے ہیں ہم اس کو دیتے ہیں میں نے نہیں دیا اس کا نام نہیں تھا اس کی بات ٹھیک ہے میں ساری چیز کو سمجھتا ہوں اس دفعہ زکات اس کو جو چیئرمین اس کا نمبر بھی میرے پاس ہے اس دفعہ 8 بند ہو گئے اس کا آپ صرف اس کا تعریف کرے جو 12,000 روپئے اس کو دیے وہ 8 بند ہو گئے ضروری نہیں ہے 42 نام اس نے دے دیے اس کا بات بھی ٹھیک ہے اس میں کچھ لوگوں کا نام آتا ہے ضروری نہیں ہے ساروں کا ابھی مجھے یہ بتاؤ تو صرف اس نے ایک لوگ ایسا کرتے کہ 3,000 اس کے نام ادھر پڑے ہیں ڈاکٹر میں نے کون کدھر ہے چیئرمین صاحب وہ جو یہ ایک درد کی بات کری ہے نا تو انہوں نے مدرسے کا درخواست ہوئی موجود میں چطور تک درخواست چیئرمین سے موضوع کا سن آج اور احتیاج ہے کہ جانا ہے اپنی گاڑی کی تھی ایک جب اتر رہے تھے گاڑی سے یقین مانے میں اس میں اتنا خفا ہوا کہ یہ لوگ مطلب اپنے ڈی سی صاحب نے تقریباً 20,000 روپے ہم کو دیے خبر آیا تو غور ہے اس میں وہ جب اس کا نام نہیں آیا تو انہوں نے مجھے کیا کہا کہ آپ ایک نام ہٹا دے اور میرا نام لے دیں تو یہ انہوں نے خود کو چیئرمین سے دے بابرا چیزوں 12,000 روپے پی بس دے 5,000 روپے کم دور کے در مو دے میں دینا یہی کہہ رہے ہیں کہ 12,000 نے جب ہم دینے گئے تو ہمیں کہا کہ 12,000 آئے ہوئے تو میں ساری باتیں ختم مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ رمیز کا نام نہیں تھا میں مانتی ہوں نہیں تھا شاہد کا نام بھی نہیں تھا چلو نہیں تھا کس کا نام تھا وہ 8 لوگوں کے مجھے نام چاہیے سبحان کا نمبر چاہیے مجھے جلدی تو آپ مجھے 5 منٹ دے دینا سبحان کا نمبر چاہیے مجھے دوسری میں یہ تو زیادہ میں
اللہ کا زبان نمبر بیٹھے آپ. ہیلو. اس کے پاس ہے نمبر, ان کے پاس ہے. جن کو 12,000 دے دیے ہیں, اس سے ریسیونگ لی تھی کہ 12,000 دیے اس کو؟ رسید تو ہم نے کروانے سے ریسیونگ لی تھی, ریسیونگ نہیں, ریسیونگ لی تھی کیا؟ اس کو چیک دیا تھا یا نقد دیا تھا؟ چیک سے لے گئے تو اس کو نقد کیا. ان کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں, اس میں نام لکھتے ہیں. اور اس سے مجھے کل 9 بجے میرے آفس میں چاہیے آپ, وہاں پہ مجھے رجسٹر بھی چاہیے, ٹھیک ہے؟ وہ بندوں کے نام چاہیے. 9 بجے میرے آفس سے آپ پہنچے ہوئے ہوں. 9 بجے تو نہیں ہو سکتا, صبح کے ساتھ ابھی آپ کا نہیں ہو رہا. میرا رجسٹر ان کے بعد جب وہ آ جائے تو ادھر سے گاڑی لے آپ کا رجسٹر ان کے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ رکھ رہے اپنے پاس ریکارڈ چیک کرنے کے لیے. نہیں, وہ رجسٹر ہوتا ہے, سرائم بھی کرنا. میں آپ نہیں بولے ریکارڈ دبا رہا, چیک دبا رہا. نہیں, مجھے بندے بھی چاہیے. بندے لے کے آؤں. ناظم صاحب, مجھے ان بندوں کے نام میں آپ کو بھیجوں گی. میں دوبارہ یہاں پہ آؤں گی یا پھر میں آپ کے تھرو ان کی ویڈیو بھی آپ نے مجھے بنا کے بھیجنی ہے. وہ بندے مجھے بتائیں. اگر یہ نہیں ہے کوئی بات نہیں, یہ نہیں ہے کوئی بات کل آپ کو نام میڈم دے دے گی نا, آپ مجھے میں آپ کو دوں گی. میں انویسٹیگیشن کر لوں گا کہ ان کو ملے کہ نہیں ملے. 12,000 ملے, اور کتنے ملے میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے. دوسرا معذور ہو یا بیوہ ہو, اس میں یہ شرط بھی آپ عام بندے کو نہیں دے سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور وہ کیا چاہتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے, چاہے 8 کے نام آئے ہیں, چاہے 10 کے نام آئے ہیں. صحیح ہے کہنا کوتر نہ ہونے کی پریشانی کی وجہ کی چیٹ زون سرائے کرے من کوتر روی ہوا چیک دے دو تو اگر رسید کو دے دے تو وہی صحیح ہے کہنا میں رجسٹر دے کے میں رسید نہیں دے. صحیح ہے رجسٹر میں اس کو چیک دے رہا تھا, تو اسے انگوٹھا لگا دیا. بند ہوا ہے کیا مجھے وہ تمام ریکارڈ چاہیے, چاہے وہ سبحان کے پاس ہے, کسی کے بھی پاس, میرے آفس میں چاہیے. جو بھی بدلنے کا ادھکار کے سیکرٹس کے لیے. میرے دفتر میں 100 بار کرنا چاہیے. اس کے نام وہاں سے جن کے نکل آئے. اس کے نکل آئے. جس سے پہلے پتہ نہیں آپ لوگ کچھ بتایا جن لوگ ان کے پاس گئے, جیسے یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس لیڈیز وہ جو ہے کاؤنسلر, ہاں, مجھے وہاں پہ درخواست پہنچائے. ٹھیک ہے, اس پہ اپنا موبائل نمبر, شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا. صحیح. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے 1 سال بعد ملے, ابھی 1 سال پہلے ملے, یہ دونوں کہہ رہے ہیں. اور یہ سب میں سب کہہ رہے ہیں کہ پیسے 5 مہینے نکلا. یہ میں پورا پتہ کروں. دیکھو میں پہلے جو نا چیمنی کی بات ہے, پھر حکومت میں تھوڑا سا کرتے ہیں, بعد اکٹھے آ گئے آتے تھے 30,000 روپے آتے تھے, 30-39,000 پہلے 30 آتے تھے. وہ سب اس میں چھوڑ یہ ہم پتہ کر کے سارا ریکارڈ پڑا ہے, سارا ریکارڈ چھوڑو پیچھے بچا خود یوں کہ جیسے سے ممبر دے کر چلو آپ کو بتایا تھا کمپلین اس حالت میں وہ کر رہے کل محنت کی آگے بس اور کیا لگا 15 کا. اور روپے نقصان کیا پکے, آپ کو پتہ سرکاری ریٹ کیا انڈوں کا؟ چھوٹا انڈا ہے 15 روپے کا دے رہے 15 روپے کا. واقعی میں دے رہے ہیں؟ میں نے نہیں خریدے یہاں سے. الحمدللہ ہم اس کو چیک کرتے یہاں جو رہائشی ہیں ان کو پتا ہوگا 15 کا ہی دیتا ہوگا شاید. ہاں بھائی, کولڈ درے جمال کا صحیح جواب پر صحیح ہے جی کولڈ ڈرنک دے صحیح دی صحیح ہے. کولڈ ڈرنک لاؤ ذرا. یہ تو روکو مشہور دے کوئی بھی لے آؤ بھائی. چکم یوں ہی روڑا بس. ڈسپوزیبل گلاس رولا ڈسپوزیبل.
चलो जी शाबाश बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो बारिश से कई बार हाँ ना 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 पूरा दी मसले वाल ये शरीफ बंदा है खैर जिसको तनाज़ है उसके साथ स्कूल की जगह उठने चाहिए और उसके दो बंदे लोग बंदा किधर है वो बंदा जुटता है हमारा दागा पसी वो सुख सोल जब की रखना मुदई रो वाले मुबारक शो मज़ामन चीवी सुका हाँ जी बंदा किधर है वो वाला उसका घर किधर है वो उधर है सर गाँव के नंबरदार आप हैं फिर राष्ट्र तो एक पख्तो किया था वो रीडर से तो वो है वाले वो तो वो तो पख्तो भी वो आगे ना फोकस तो नहीं से बना वो भी यही कह रहे हैं कि क्या फोन नहीं करता रास्ता बंद है गुलाबी लगे सब लगे रास्ते का क्या मसला है गुलाबी से पूछते हैं रास्ते का क्या मसला है मैंने बताया उस पुस्तक में बताओ फिर मैडम को उर्दू में अवामी रास्ता है उनका गुजरात नहीं है कि वो बंद कर बस मैं यही पूछ रही थी हाँ बुलाए तेरा किधर है बंदा वो इनके रास्ते का क्या मसला है इधर कौन सा रास्ता है जो वो भी इसी तरह सिजाद मौलाना का गले दो दफा मैंने मटेरियल अंदर डाल दिया और मैं वापस कर गदों पे लग कर वापस लेकिन छोटा रहता हुआ है मैंने इसलिए बोला कि वो कह रहे रिवायत होता हम जैसे कि अल्लाह रहते हमारे जमीन से कट गया हिम्मत चैनल देखें हाँ हल्का तालीम जो रास्ते को मारे थे क्या नाम है वहीदुल्लाह घर है तुम्हारा स्कूल को जमीन किसने दी है हमने दी है हमने किसने वालिद साहब ने वालिद साहब किधर है वालिद साहब तो घर में कितने लोग हैं घर में 15-16 आदमी हैं रास्ते का क्या मसला है वहीदुल्लाह इस रास्ते का जो स्कूल को जाता है क्या मसला है उसका मसला तो कोई नहीं स्कूल का रास्ता है तो वहाँ पे उधर जितने लोग रहते हैं उन आस-पास घरों में वो खातून है वो खातून किधर है हाँ इनको किसने मना किया है रास्ता इस्तेमाल करने से मैडम इनका रास्ता ये जाता है मेन रास्ता ये है मैडम किसी से भी गाँव में किसी से भी आप पूछ ले अभी ये लोग उधर गेट लगा रहे हैं बगैर पूछे पाछे किसी से भी पूछे पाछे ये गली है सबके आम इस्तेमाल के लिए फिर वो उधर गेट लगाए वो उधर खिड़की लगाए वो उधर रोशनदान लगाए तुम्हें क्या मसला है कोई मसला नहीं है लेकिन मैडम ये तो बताना चाहिए कि ये हम लेके जा रहे हैं ये हम इधर लगा रहे हैं एक मिनट किसको बताना चाहिए किसको बताना चाहिए लेकिन ये ना कि मैडम अभी वो गेट लगा रहे पहले गेट वो सरकार का रास्ता है ये सरकारी जगह है अगर किसी की इजाजत चाहिए तो वो मैं हूँ तुम नहीं हो समझ आ गई है इनका और हमारा आपस में पहले का मसला पड़ा हुआ क्या मसला है इनका था हमारा भाई का तबादला किया था हमारे वाले साहब ने कहा था कि ये ना करो ये नहीं हो सकता और उसके बावजूद इन्होंने वो किसने तबादला किया किन्होंने इनके ये क्या है ये टीचर है नहीं मेरी बहन क्लास 4 में अच्छा क्लास 4 में अच्छा एक मिनट मेरे वालिद के बाद उनको नौकरी मिली थी तो तबादला 10 साल से मैडम बात सुन 10 साल से वो फिलहाल जा रही थी यहाँ से अभी तक पड़ा हुआ है इनके साथ 10-20 किलोमीटर दूर है वो शाम तक आ जाती थी तो 10 साल के बाद उनका तबादला मंजूर हुआ और इनके भाई को हमारे वालिद साहब के स्कूल में तबादला कर दिया गया गाँव में ही है वो अभी तक हल नहीं किया
तो इन्होंने 1.5 साल से हमारे साथ लड़ाई झगड़े किए और वापस हमारी बहन का तबादला दूसरे स्कूल में करवाए थे। हम नहीं मानते, हमारे भाई यहाँ से नहीं तो ठीक है, लेकिन वो बात तो करनी चाहिए ना। हमारे अपने रिश्तेदारी है गांव में, कोई मसला नहीं है उसका। अभी तक हमने कुछ भी नहीं कहा, अभी तक ये जा रहे हैं। अभी तक तुम कह भी नहीं थे, सुबह तो ये आए थे, सुबह ये आए थे 15-10 आदमी और हमारे ऊपर हमला किया तुमने, इसके ऊपर हमला किया तुमने। कुछ भी नहीं किया। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, हमला किया या नहीं किया? किया हमने, सिर्फ कहा है ये वीडियो हमारे पास है, कलमा पढ़ो, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अभी दिखाओ इसको। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने नहीं किया, हमने नहीं, वेरी गुड, हमने नहीं किया। वेरी गुड वहीदुल्लाह। ये हमने पूछो कि हमने सिर्फ ये कहा है कि ये रास्ता आप इस्तेमाल कर रहे हो, हमें बताना। क्यों बताना चाहिए? क्यों बताना चाहिए? हमारी इसमें रिश्तेदारी है, वो मसला पड़ा हुआ है गाँव में सब कुछ है। ये देखिए, ये कह रहे हैं सुबह नहीं किया, ये खुद आया था हमारे घर। मैं सिर्फ बताने आया था, मैंने कुछ भी नहीं कहा इनको। कलमा पढ़े, ये कलमा पढ़े कि मैंने इनको कुछ कहा है। चलो मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान पे कसम मैं भी रखता हूँ, हाथ रख लेता हूँ। मैं सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन मिस्त्री उधर ही खड़ा था, मिस्त्री इधर ही होगा और मैं उसको बताता हूँ मिस्त्री आगे कुरान पे हाथ रख ले कि मैंने इनको कुछ कहा है, मैंने कुछ कहा है कुछ। अभी ना मिस्त्री उधर, मिस्त्री आइंदा ऊंची आवाज में भी बात नहीं करनी। ये रास्ता अवामी रास्ता है, अवाम आम आदमी मर्द और औरत इसको इस्तेमाल करेंगे, उसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। समझ आ गई? अगर मुझे खबर मिली ना तो मैं खुद इंशाल्लाह तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगी और आई विल मेक श्योर कि तुम जल्दी ना निकलो बाहर, ठीक है? ये बदमाशी नहीं चलेगी यहाँ पे, समझ आ गई? और जिसका मसला है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है कि अपने लोगों को इधर से उधर या उधर से इधर ट्रांसफर करें। हाँ, और आइंदा मैं ना सुनूंगी, मना नहीं कर रहा, हमने इनको नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं कहा। आइंदा मुझे कोई मसला ना मिले। और मिस्त्री को ले आओ अभी, वो मेरे ऊपर ये कर ले, इन्होंने हमला किया है तो ठीक है, मैं जुर्म होगा मैं मानने के लिए, नाजिम साहब मैं मानने के लिए तैयार हूँ। आइंदा अगर इन खातून को मसला हुआ, लेजिट मसला, फजूल का मसला नहीं, इनको नहीं बल्कि इस तरह किसी के भी मसला, ठीक है? देखें, बात यह है कि ये जो है ना यहाँ पे लोग, उनको आप बेहतर समझते हैं कौन आगे झूठ बोल रहा है, कौन आके अपनी कहानी बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है? इनको मतलब आपने मुझे कम्युनिकेट करना है, इंशाल्लाह यहाँ से बंदा यहाँ से उठवाया जाएगा। ये आप समझ ले कि ये जगह पक्की हो गई है, इस पे बिजली चली गई है, गैस चला गया, स्कूल बन गया, ये सरकारी रास्ता हो। मैडम जी कर्नल साहब आ गए, कोई काम नहीं है। बहुत शुक्रिया करना साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मुझे पता चला था ये काफी अरसे से मसला चल रहा है। हाँ जी, बहुत जाती वाली बात है ना, झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे कजिन है, लेकिन मैंने कभी इनके अंदर नहीं किया, मुदाखलत नहीं की, मुदाखलत नहीं की। अदरवाइज ये जो रास्ता है ये भी गवर्नमेंट का ये रास्ता है, ये वाला नहीं है। तो आप उसमें देखें ना नक्शे में, तो ये वाला गवर्नमेंट रास्ता जो उनके घर से गुजरता है वो भी इन्होंने बंद किया। सही। अभी इंशाल्लाह आई विल सेंड माय रेवेन्यू स्टाफ, आइडेंटिफाई करेंगे। और किया है वो, उसको मैंने बुलाया था जो यहाँ का वो है अहमद शाह पटवारी साहब, पटवारी अहमद शाह नाम। उसने कहा कि ये वाला रास्ता है गवर्नमेंट का और ये वाला जो है ये प्राइवेट है, ये हमने छोड़ा हुआ है, मेरी फैमिली। ठीक है, असल रास्ता ये है, ठीक है। और इस रास्ते में जब एक दफ़ा गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, सारी चीज़ें हो गई हर चीज़, तो फिर इनको कोई हक नहीं। बिल्कुल, ये पब्लिक का, हर बंदे खास तो आम का राइट ऑफ वे है, यहाँ पे वो उसको यूज़ करेंगे और कोई भी किसी भी किस्म की मसाइल हर्डल्स क्रिएट करेगा तो तैयब साहब, नाजिम साहब, आपने कम्युनिकेट करना है और उसके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेंगे, ठीक है? ओके जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। نخرج تالي رسخول يارنا
हाँ जी, ये क्या मसला है जी यहाँ पे रास्ते का? नाम क्या है आपका? सज्जाद अहमद जी। रास्ते का क्या मसला है आपका? पश्तो में बात करें, पश्तो में बात करें, क्या मसला है? इन लोगों को रास्ता नहीं छोड़े, ये जो इनका घर है ये रास्ता नहीं छोड़ा, नहीं करने दे रहे इसको। क्या मसला है? पश्तो में बताओ क्या मसला है? खामोश। क्या मसला है यहाँ पे? पक्का क्यों नहीं करने दे रहे? क्या कह रहे वो कह रहे वहाँ तक कर लें, लेकिन ये वाला जो है ना, ये हमारा सहन है। ये किसका सहन है? किसने बनाया तुम्हारा सहन? यहाँ तक कौन सी तकसीम? यहाँ तक घर की बाउंड्री है, देखो दीवार है इसका, यहाँ तक घर की बाउंड्री है। पीछे करो अपने घर की बाउंड्री, और यहाँ पे पक्का होगा। समझ आ गई? और इधर वालों को किसी ने नहीं रोकना, जो रोकेगा नाजिम साहब, ठीक है। अगर मुझे आपने ये रिपोर्ट किया, मैं उसी वक्त पुलिस को भेजूंगी। मैंने नहीं देखना कौन क्या करता है, कौन जो है ना कितने अरसे से किधर बैठा हुआ है। उसके दो अडरों को नमक मुझे दीजिए कि बेदो यार पकाऊं जैसा मसला। आप आइंदा जो है ना इसको कोई मसला नहीं है। बस चीजें कंक्रीट दीजिए कि कौन आसना जो बेतो इसको अंदर ले जाओ, वरना इसको मैं पुलिस में लेके जाऊंगी। चलो मेरी मदद हो जाए, मतलब ये मकसद ये है। मेंटल हॉस्पिटल में कभी मैं पूछ कैसे तो हम अभी देख सकते हैं वक्त से इसको बीमार है तो हम नहीं चलो इसका करते हैं। इसको आगे नहीं छोड़ रहे कि इसको हम निकाले तो इस पर आप है ना हमारे रिकॉर्ड पर आ जाए तो हम इस पर काम करेंगे। इसको कूद नहीं बैठा क्योंकि इधर रुकावट है काफी। بريده بس مشري مشتري كم سوشيال وركر طيب زي تغيري كم بس كده مظبوط ولا جواز كله ان شاء الله هو مش कौन सा पेंसिल का ऑल पर वाला يا اخي ما كنت غاوي ان شاء الله قدام بيدار وقواعد नहीं किधर है पेंसिल वाला? पेंसिल वाला दिखाएं। ये तो दूध नहीं, ये तो जूस है, जूस थे। तो जूस, ये तो नेस्ले वाला कितने का दे रहे हैं? 50 لا لا والجا كم دوزه और टेरुना चेशला बोली। इंशाल्लाह हम भी पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन क्योंकि आजकल तो जमाना ही आप लोगों का है। तो आपका बहुत मेहरबानी है। रोड पे गिरो बोल पे हम सिद्धार्थ से बोले तो सही कहना बेटा गलती ठीक है। चलिए बहुत मेहरबानी है साहब, बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से पूरी कौम की तरफ से मैं आपको शुक्र बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपका शुक्रिया। अगर आप जैसे जो है ना हमारे आगे हो तो इंशाल्लाह हम पीछे नहीं इंशाल्लाह पानी का बहुत मसला है, इसका खत्म करना। ठीक है, पानी का मसला भी खत्म करेंगे, लेकिन जब तक खत्म नहीं तो तब तक मर्द हजरात की औरतों के साथ पानी उठा लें। ठीक है, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। मैं आपको जो है ना छोटी देती हूँ, कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ पानी का पाइपलाइन का गाँव से था नहीं, और साथ में जो इलीगल है ना, इलीगल को तो